ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللویا. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں جماعت میں جسے بھی خدا کا مبارک کریں وہ دعا میں رہنے کا. جماعت میں کوئی بھی کھڑے ہو کر دعا میں رہنے کا. زندہ اور باپ اور رشید کے خالق مالک یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. پاک خدا تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی تمجید کے لائق ہے. میرے باپ آج کے خاص طور پر میرے باپ اس مبارک دن کے لیے ہم نہایت دل سے شکر گزار ہے، جس میں میرے باپ ہم تیری باتوں کو سیکھ رہے، تیرے کلام کو سیکھ رہے. اور میرے باپ تو دوسرے باپ جنہوں نے اپنے کلام کی خدمت سے انجام دے دی، ان کے لیے بھی شکر گزار ہے. جنہوں نے ابھی دینی ان کو تیرے ہینڈ اوور کرتے، تاکہ میرے باپ جب تک بولے تیرا روح میں سے اتر بولے اور ہم میرے باپ کلام سے برکت کو رسید کریں. پربھو یسوع کے کبھی کا نام سے مانگتے ہیں، آمین. آئے ہم چوتھے کلمے کی طرف آتے ہیں. قدس متی کی انجیل 27واں باب اس کی 45ویں آیت. متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 45ویں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر 30 سے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور دوپہر سے لے کر 30 سے پہر تک تمام ملک میں کیا چھایا رہا؟ اندھیرا چھایا رہا. دوپہر سے 30 سے پہر تک. جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ خداوند کہ تو نے دوپہر ہی کو کیوں ایسا کیا؟ تو نے 3 بجے کے بعد کیوں اندھیرا نہیں کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح سولی پر جب لٹکائے گئے تو تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، اور جب اتارے گئے تو 3 بجے کا ٹائم تھا. 9 بجے کیوں اندھیرا نہیں ہوا؟ 10 بجے 11 بجے کیوں نہیں اندھیرا ہوا؟ 12 سے تقریباً 3 بجے تک، دوپہر سے 30 سے پہر تک اندھیرا چھایا. یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ وقت تھا جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور روشن تھا. خدا نے اس وقت کو بالکل، جب دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بالکل روشنی ہے، سورج پورے زور کے ساتھ چمک رہا ہے، خدا نے تب اندھیرا کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی، جو اس بات کا پیغام تھا کہ دنیا میں کوئی عجیب چیز ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور جب ہم آموس کی کتاب 8ویں باب کی 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا. ایسے لگے گا جیسے غروب ہو گیا، روشنی بالکل اس کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن ہے، لیکن سورج گرہن اتنا لمبا نہیں ہوتا 3 گھنٹے. اور سورج گرہن اس ٹائم پہ جب نیند فصل کا ٹائم ہوتا ہے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ڈائریکشن ہی اپوزٹ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج گرہن ہو. چاند گرہن کی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن سورج گرہن کی پاسبلٹی نہیں ہے. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، دوپہر سے لے کر 30 سے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا. خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں نے سورج کو اور چاند کو، ستاروں کو اس لیے بنایا تاکہ زمین پر نشانیاں ظاہر میسج دیں. کل جب ہم دعا کر رہے تھے پاسٹر منیر صاحب اور ہم نے پاؤں دھونے کی عبادت کی، اور جب خدا یسوع نے کہا کہ تم پر پاؤں دھونا کیا ہے، یہ فرض ہے، اور خدا نے کہا تم اس خدمت کو سر جان دے رہے تھے. اس کے بعد جب ہم نیچے بیٹھے تو موبائل پہ سسٹم نے کہا تقریباً 70-80% بارش کی پروبیبلٹی ہے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم دعا کریں گے. ہمیں کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے. جو خدا دوپہر سے 30 سے پہر تک اندھیرا لا سکتا ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کو. آمین آمین.
तकरीबन 80% से ये मुराद है कि आपकी एरिया में 80% ऐसा आपका एरिया जहाँ पे बारिश की प्रोबेबिलिटी है होगी। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा मौसमों को कंट्रोल कर, खुदा ने एलिया को बड़ी ताकत दी थी मौसम को कंट्रोल, जब चाहता बारिश करता है, जब चाहता बारिश को रोक देता है। आमीन। हमारा खुदा मौसम पर इख्तियार रखता है। और फिर हम कलमे की तरफ आते हैं, लिखा है और 30 से 35 यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा एली एली लमा शबक्तनी। मैं ये सोच रहा था कि खुदा यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा। यीशु मुखातिब हैं और जिनसे मुखातिब है हमें लगता है वो तो दिल को भी जानते हैं। हमें अन्ना क्या कर रहे थे, मुंह में दुआ कर रही थी। ऐसा ही ना यीशु को चलाकर बात करने की क्या जरूरत थी, ताकि वो तमाम लोग जो सामने हैं वो इस बात को सुन लें। आमीन। यीशु ने चलाकर बड़ी आवाज से चलाकर कहा एली एली लमा शबक्तनी। ये जो जुमला है ये आरामी जुबान का, यीशु की मादरी जुबान जो थी वो आरामी जुबान थी। यीशु की मजहबी जुबान थी वो इब्रानी जुबान थी, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो यूनानी थी। और यीशु ने अपनी मादरी जुबान में कहा, जब बंदा बड़े दुख में या कर्ब में होता है, तकलीफ में होता है, उसकी जुबान से वही जुबान निकलती है उसकी मादरी जुबान। ऐसे उसने कहा एली एली। एल जो लफ्ज है, इस एल का मतलब है खुदा, और जब एली कहा जाता है तो इसका मतलब होता है मेरे खुदा। लमा का मतलब होता है क्यों, और शबक्तनी का मतलब है मुझे छोड़ दिया। खुदावंद ये अल्फाज जो बोल रहे हैं एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। बेशक वो एक सवाल कर रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ एक भरोसा भी है कि तू मेरा अभी भी खुदा है। आमीन। तू मेरा अभी भी क्या है जी, खुदा है। यीशु ने आरामी जुबान में ये अल्फाज कहे। यीशु ने इसलिए मैं, हालांकि ये ज़बूर 22 के पहली आई, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब इस सारे 22 को पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे ये मसीह के मुतालिक बयान किया जाए। वो मेरे पोशाक को बुरा डालते हैं, वो मुझे मारते हैं, ये सारी चीजें। और यीशु ने जब कहा एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मैसेज था कि हम जब मुसीबत में या दुख में या परेशानी में हो तो अपनी निगाह को, अपने ध्यान को, अपनी उम्मीद को, अपनी सोच को तो भी अपने खुदा में खुदा करें, तो भी अपने खुदा में खुदा। और ये यीशु मसीह की कंप्लीट बशरियत को जाहिर कर, एक बशर जब उसे भूख लगती है तो वो कहता है मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, जब उसे प्यास लगती है तो वो सामने वाले से कहता है मुझे पानी चाहिए, जब वो थक जाता है तो कश्ती में हम देखते हैं वो सो जाता है, और जब उसे जिस्मानी तकलीफ होती है, इस चीज को उसने जाहिर किया कि वाकई ही उसको तकलीफ हुई, वाकई ही वो कुर्बान हुआ, वाकई ही वो कर्ब से गुजरा था। तो उसने कहा आए मेरे खुदा तूने मुझे पूछा। इस चीज की अलामत था उसने वाकई कुर्बानी की कीमत को अदा किया। आमीन। और फिर मैं सोच रहा था कि खुदावंद अब्रानी जुबान में क्यों नहीं बात, तूने अरामी जुबान में क्यों,
बात। हालांकि इब्रानी जुबान तो मजहबी जुबान थी, खुदा जुबानों का मुताज नहीं है। खुदा के नजदीक ऐसा नहीं है तो कोई जुबान मुकद्दस है कोई जुबान नापाक, ऐसा नहीं है। खुदा उस बात को सुनता है जो आप अपने दिल से निकालो। खुदा के नजदीक जुबानों की कैद नहीं है। चाहे कोई इब्रानी जुबान में बात करे, चाहे कोई यूनानी जुबान में बात करे, चाहे कोई अरामी जुबान में बात करे, उसको सब जुबानें आती हैं। आमीन। और फिर यीशु ने अरामी जुबान में ही क्यों बात की? क्योंकि मोस्टली जो वहां पर करीब सुन रहे थे वो तमाम के तमाम मोस्टली जो है अरामी जुबान बोलने वाले थे। हम इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखे हैं जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा। कुछ ऐसे थे जिन्हें अरामी जुबान की समझ नहीं थी आती, चंद एक थे। उन्होंने कहा शायद ये एली को बुला रहा है, शायद ये क्या कर किसको बुला रहा है, एलिया को बुला रहा है। लेकिन मोस्टली जो थे वो जुबान को समझते। खुदा उस जुबान को इस्तेमाल करता है जिसमें लोग खुदा के कलाम को समझते। इसका ये सबूत है कि जब कलाम लिखा गया तो पूरी दुनिया के अंदर यूनानी जुबान आम थी, खुदा ने यूनानी जुबान में कलाम। आमीन। और सिर्फ यही नहीं है, जैसे जैसे जुबानें बदलती गई खुदा उसी जुबानों को इस्तेमाल करता है। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा के नजदीक ऐसा नहीं कि ये मुकद्दस जुबान है, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो जुबान जिस जुबान में लोग मौजूद हैं खुदा उसी जुबान में कलाम। मकसद क्या है? मकसद इब्रानी पढ़ाना नहीं है, मकसद अरामी सिखाना नहीं है, मकसद ये नहीं है कि यूनानी आए, मकसद ये है कि खुदा के कलाम को लोग समझेंगे तो अमल करें। आज बहुत से लोग कलाम जिनको वो दावा करते हैं ये खुदा का कलाम है, पढ़ते तो हैं, समझ कोई नहीं आता। ये खुदा का मकसद ही नहीं। इलाही मनसूबा खुदा का ये है कि लोग खुदा के कलाम को समझें कि कौन है। आमीन। यीशु ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। और बात को समझ नहीं आती, वो अपनी तशरीह पेश करती। उन्होंने कहा कि ये एलिया को बुला रहा है। वो शायद ये दावा कर रहे हो कि हमें समझ आ गई जो इसने कहा, लेकिन वो ना समझ है क्योंकि उन्हें वो ज़बान समझ नहीं आती जो खुदा। आमीन। बहुत से लोग गलत तर्जुमा करते हैं, वो शायद समझते कि हमें इस बात का इल्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो समझ नहीं सकते। जो इबारत दीवार पे लिखी जाती है बिने बिने तकीद और फसी, वो वही पढ़ सकते हैं जिनके अंदर खुदा मौजूद है। आमीन। में सब कुछ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। हम दुआ करें पेशरात से। मेहरबान स्वान जलाले पाक प्रभु फाज जहर बल के खालिक मालिक शक्ति जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार मोहब्बत के लिए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज के दिन के लिए। खुदा तूने हम सबको फजल बख्शा तो तेरे हजूर में सर नबूकर खुदा तेरे साथ प्रस्तुत कर सके। खुदा तेरा शुक्र, तेरा फजल चाहते खुदा आज के बार के दिन के लिए। यीशु के कवि कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। इस कलमात की मीटिंग में आप सबको वेलकम करते हैं। लम्हा वन बाय वन हम खुदावंद यीशु के लम्हात को याद करते हैं जो खुदावंद ने जो अल्फाज बयान किए, जो कलमात
کلمات بیان کیے جو ہماری نجات کے لیے، جو ہمیں بہت سارے لیسن دیتے ہیں، بہت سبق دیتے ہیں ہماری زندگی کے لیے کہ اگر آپ ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم بہت سڈن چیز بہت جلدی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو 5واں کلمہ جو جسمانی دکھ کا ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 28 آیت میں 28 آیت اس میں یوں مرقوم ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں، تو کہا میں پیاسا ہوں، کہا میں پیاسا ہوں۔ تو جو خداوند یسوع مسیح تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی پیاس بجھانے والا ہے، وہ تو زندگی کا پانی دینے والا ہے، تو وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو خداوند نے کیوں کہا کہ میں پیاسا ہوں؟ جیسے دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، وہ ایک کامل خدا تھا اور ایک کامل انسان بن کر، تو وہ دنیا میں آیا اور انسان جو تکلیف محسوس کرتا ہے اس نے وہ تکلیف محسوس کی۔ انسان جو تکلیف محسوس کرتا ہے وہ اس نے تکلیف محسوس کی۔ کہنے کو تو ایک سادہ سے الفاظ ہے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن اس میں گہری سچائی ہے، اس میں کوئی روحانی سچائی بیان کی گئی ہے۔ بیسیکلی وہ جسمانی پیاس کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ روحانی پیاس کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں بیان کیا ہے روحانی پیاس، کیونکہ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے ہمارے لیے اذیت اٹھائی تاکہ ہم جو ہے اس نجات حاصل کر لیں۔ اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے، اس نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھوں پر پاؤں میں کیل ٹھکوائے تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں، تاکہ ہم زندگی میں اس دیکھو روحانی پیاس کا مطلب اس طرح ہے کہ یسوع جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نوٹس کیا، وہ ایک کامل انسان بن کر آئے، وہ ہر چیز کو محسوس کیا۔ دیکھیں عام انسان جو ہوتا ہے نا، جب وہ گناہ میں گھرا ہوتا ہے تو وہ کیا وہ خداوند سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں کہتے ہیں، اس میں بیان کرنے کا روحانی پیاس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے اور خدا اس کی طرف خدا سے موڑ لیتا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے اس دکھ اٹھایا تو وہ ایک کامل انسان، وہ ایک عام انسان کی طرح دکھ اٹھایا۔ تو جب اس نے سب ہمارے گناہ اپنے سر لے لیے، تو وہ سب گناہ اپنے سر لے لیے تو وہ اس پیاس کو محسوس کرتا ہے، وہ اس خداوند کی روح کی پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جسمانی پیاس کی بات نہیں ہے، یہ روحانی پیاس کی بات ہے، روحانی پیاس کی بات ہے۔ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اس نے ہمارے لیے ایک انسان ہوتے ہوئے جو ایک انسان محسوس کرتا ہے وہ سب کچھ محسوس کیا۔ اس لیے جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، جب ہم خداوند کے قریب پاس آتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کے روح میں دنیا میں آ کر وہ سب باتیں وہ سب چیزیں، وہ سب دکھ محسوس کیے جو ایک عام انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس کلمے میں ایک چیز اور بھی ہے تاکہ دیکھتے ہیں کہ ایک نبوت کی تکمیل ہو، جو کہ پرانے عہد میں ہم پڑھتے ہیں زبور 69 اس کی 21 آیت، 69 زبور اس کی 21 آیت۔ زبور اس کی 21 آیت کا اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ انہوں نے سرکہ اسے پلانے کی کوشش کی جب اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ تو یہ ایک نبوت کی تکمیل ہوتی ہے
कि खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने सिरका बुलाया कि जो खुदावंद अपने कलाम में बयान करता है तो वो ही वो उस अपने बंदों के लिए उसको पूरा करता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो उसके बारे में नबूवत की गई थी तो वो नबूवत भी इससे पूरी होती है कि जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, जब खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उससे एक नबूवत पूरी होती है। तो वो सदहानी प्यास की बात करते हैं। आइए देखते हैं कलाम का 10 में से यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35वीं आयत से उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जो मुझ पर जो ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए ये इस बात की तकमील होती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, वो किस प्यास की बात कर रहे हैं? वो रूहानी प्यास की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे दुख उठा लिए, हमारे गुनाह अपने साथ ले लिए, और जब उसने हमारे गुनाह अपने साथ ले लिए तो खुदावंद का रूह से दूर हो गया। तो वो आम इंसान था, तो जब आम इंसान के ऊपर गुनाह होते हैं तो खुदावंद का रूह उससे दूर हो जाता है, तो वो उस प्यास को, खुदावंद की रूह को प्यास को महसूस करता है। तो इसलिए यहां भी देखें कि तो खुदावंद, तो इसलिए जो खुदावंद पर ईमान लाता है, देखिए जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखता है वो इसलिए वो प्यासा ही रहता है, वो इस रूह से दूर रहता है, खुदावंद के पाक रूह से दूर रहता है, तो नहीं होगा। इसलिए जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है, उसकी बातों पर चलता है, उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालता है, उसके मुताबिक चलता है, तो वो कभी रूहानी प्यास को महसूस नहीं करता है, वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहां कलाम में ये तो नहीं है कि वो उसको पानी नहीं मिलेगा, नहीं, वो उस चीज की बात है कि जब खुदावंद जो उस पर ईमान लगता है वो हर तरह की आजमाइशों से गुजर जाएगा। खुदावंद उसे हर तरह की आजमाइशों से पाक रखेगा, तकलीफों परेशानियों से दूर रखेगा, तो वो कभी प्यासा नहीं, वो कभी किसी चीज की कमी अपने अंदर नहीं महसूस करेगा, वो कभी अपने आप को दूसरों से अलग महसूस नहीं करेगा, वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कहेगा कि यार मैं कैसा हूं, मैं अपने आप को क्रोधेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा मेरे पास ये चीज नहीं है, वो नहीं कहेगा मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास गाड़ियां नहीं है, वो हमेशा खुदावंद का शुक्र करेगा, वो थोड़े में भी खुदावंद का शुक्र करेगा। तो वो खुदावंद ने कहा है कि वो हर हालत में अपने आप को, जब वो खुदावंद से दुआ करें, ईमान रखेंगे, तो हम अपने आप को मुतमिन महसूस करते हैं। हमने ये देखा होगा कि हम तकलीफ परेशान, जब भी हम खुदावंद से दुआ करते हैं, हम अपने अंदर अपने आप को मुतमिन महसूस करते हैं, दिली तौर पर मुतमिन होते हैं। तो वो ही ये कहते हैं कि वो कभी प्यासा ना होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके करीब आए, अपने आप को उसके कलाम के मुताबिक ढालें। लेकिन जब हम गुनाह में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, खुदावंद का रूह हमसे दूर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम उस खुदावंद के रूह को, हम अपने आप को जांचें और खुदावंद के रूह को महसूस करें अपने अंदर। रोज कहते हैं रोजा रखें, दुआ करें, खुदावंद के करीब आए, अपने आप को खुदावंद के करीब लाएं, ताकि वो जब खुदावंद हमें कबूल कर लेता है तो वो कभी हमें किसी चीज की अपने अंदर कमी महसूस नहीं होगी, उस प्यास को हम कभी महसूस नहीं करेंगे। आइए कलाम के आगे देखते हैं यूहन्ना 7 बाब उसकी 37 आयत। सात बाब उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे।
عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. تو یہ دیکھنا اگر جو کہتا ہے کہ جو پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے تو وہ پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود زندگی کا پانی دینے والا ہے وہ پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اس کو پیاس کس لیے؟ وہ پیاسا کس لیے ہوا؟ ہمارے لیے. اس نے ہمارے لیے دکھ سہا. ہمارے جو دیکھیں نا ایک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. انسان اپنے گناہ کی وجہ سے نا تو خداوند سے دور ہوگا. انسان نے گناہ کیا اور وہ خداوند سے دور ہو. خدا کا تعلق بن کے خدا اور انسان کے درمیان تعلق کو جوڑنے کے لیے وہ اس دنیا میں آئے. اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اس نے انہیں کہتے ہیں پل کا کام کیا ہے. انہوں نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور جب ہمارے گناہ اس کے اوپر آ گئے تو خداوند کا روح تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو گیا اور وہ اس روحانی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خود پیاسا رہ کر ہمیں زندگی کا پانی بخشا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود زندگی کا پانی پینا چاہتے ہیں, ہم پیاسا نہیں رہنا چاہتے, تو ہم خداوند کو اپنائیں. آج اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر ہم ہر سال ان چیزوں کو باتوں کو یاد کرتے ہیں. ہم محبت کو یاد کرتے ہیں, نجات کو یاد کرتے ہیں, معافی کو یاد کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہیں؟ کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر روحانی پیاس ہے؟ کیا ہم گناہ میں گھرے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر کسی کو گڈ فرائیڈے کے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر کسی کے لیے نفرت ہے تو اپنے اندر وہ محبت رکھیں, ان کے لیے محبت رکھیں, اس نفرت کو ختم کریں. اگر کسی کے لیے دل میں بڑی برائی ہے تو خود کو معاف کر دیں, اس کو معاف کر کے آگے بڑھیں اور خود سب کچھ خداوند چھوڑ دے, خداوند پر چھوڑ دے. خداوند پر دل سے ایمان رکھیں تو وہ ہماری پیاس بجھائے گا, وہ ہماری کمیوں کو دور کرے گا. خداوند ہماری ہر چیز جو ہمیں چاہیے خداوند ہمیں عطا کرے گا, کیونکہ اس کا پلان ہے ہماری زندگی میں. جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے اس پر بھروسہ رکھیں اور اس محسوس کریں کہ خداوند ہماری پیاس کو, ہمارے اندر روحانی پیاس ہونی چاہیے. ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم گناہگار تو نہیں, کیا خدا کا روح ہم سے دور نہیں, اور خداوند کے روح پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم کو بلیس کرے. آئیں سب اپنے سب کچھ جھکائیں گے اور اپنی آنکھیں بند کریں گے. ہم نیکسٹ پڑھیں گے چھٹے کلمے کی طرف, اور میں درخواست کروں گا رفیق سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. چھٹے کلمے بھی جاتے چھٹا جی یسوع میں آپ سب کو سلام. ہم خداوند یسوع المسیح کے یعنی کلمات المسیح کو سن رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس میں اب ہم چھٹے کلمے کی طرف جا رہے ہیں. سو آئیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل, اس کا 19 باب اور اس کی 30ویں آیت. Praise you, Jesus. Hallelujah. کوئی اونچی بات سے پڑھے گا. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دی. Praise, hallelujah. یسوع نے سرکہ پیا اور کیا کہا؟ تمام ہوا. کیا یہ کلمہ دھیمی الفاظ میں کہا گیا ہوگا یا دھیمی سی الفاظ یا دھیمی آواز میں کہا گیا ہوگا؟
क्या इमेजिन करते हैं? तमाम हुआ। बड़ी आवाज से चिल्ला के कहा होगा कि तमाम हुआ। ये कलमा हम हर गुड फ्राइडे पर सुनते हैं कि ये फतह मंदी के इजहार का ही नहीं बल्कि कामलियत का एक नारा है। ये किसका नारा है? कामलियत का एक नारा है। अगर इसको देखा जाए तो यूनानी में ये नारे को कहा जाता है टेटेलेस टाई। टेटेलेस टाई इसको कहा जाता है यूनानी में। आज ये जो मिशन है उसकी कामलियत है वो खत्म हो रहा है, उसकी कंप्लीशन जारी है। अब अगर इसको देखा जाए तो उसका चलाना जो है वो एक दर्दनाक नहीं, वो दर्द से नहीं चला रहा, वो दुखी चलाना नहीं है, वो एक फतहमंदी का नारा है कि तमाम हुआ। हालेलुया। ये खुशी का नारा है और फतहमंदी का नारा है। यूनानी जुबान में अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब है कि कर्ज पूरा हो चुका, कर्ज उतार दिया गया, कर्ज चुका दिया गया, कोई कर्ज बाकी ना रहा, तमाम हुआ। कलाम हक में अगर देखें तो मुकद्दस लूका के दूसरे बाब में ये मलकूम है कि जब यीशु के वालिदैन ईद फसह पर यरूशलेम में जाया करते थे तो लिखा है जब खुदावंद यीशु पहली बार वहां पर तशरीफ लाए तो वहां पर एक अजीब वाकया होता है। वहां पर मां जब अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो एक खूबसूरत सा जवाब मिलता है। वो क्या है? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। इससे साफ जाहिर है कि उसे एक खास मिशन दिया गया है जिसे वो कंप्लीट करने के लिए जिंदा है, जिसे वो कंप्लीट करने के लिए जारी और सारी है। उसने उस मिशन का आगाज उस दिन से किया कि वो अपना उससे अलग होकर वहां पर मौजूद है और वहां पे उसने कहा कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। और अगर इससे भी पीछे चले जाएं तो यीशु मसीह की पैदाइश पर जब फरिश्ता क्या करता है? सलाम देता है, तब वो क्या कहता है कि ये अपने लोगों की किसके लिए? गुनाहों की निजात के लिए है। दूसरी बात कि इलाही इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, यानी तमाम हुआ। वो इलाही इंसाफ के तकाजे क्या हैं? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा ने जो हमारे लिए बख्श दिया, खुदा की बख्शीश जो हमारे लिए है वो है खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया है। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक अपने बेटे को अता कर दिया। यीशु मसीह ने शरीयत का तकाजा पूरा किया है। तीसरी बात कि पुराने अहदनामे की कुर्बानियों का निजाम पूरा हुआ, यानी तमाम हुआ।
पुराने अहदनामे में कुर्बानियों का अक्स जो यीशु मसीह ने सलीब पर मुकम्मल किया, जितनी भी कुर्बानियां थी, खता की कुर्बानी, ये कुर्बानी, माफी की कुर्बानी, कौम के लिए कुर्बानी, उन सब कुर्बानियों का अक्स यीशु अल मसीह था। और यीशु अल मसीह ने सलीब पर चढ़कर उन तमाम तर कुर्बानियों को कंप्लीट किया, क्योंकि वो उन सब कुर्बानियों का क्या अक्स ठहरा है। यीशु मसीह ने उस मकसद को पूरा कर दिया जिसके अक्स में पुराने अहदनामे की कुर्बानियां की जाती थी। अब किसी बर्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाक और बेऐब बर्रा जो तमाम जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो यीशु अल मसीह ने पूरा कर दिया। और ये क्या कह दिया? तमाम। हालेलुया। उसने कह दिया तमाम हुआ। आज के बाद किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चौथी बात, शैतान, गुनाह और मौत पर फतह। कुलसियों 2:14-15 में लिखा है, फतह याबी का शादियाना बजाया गया। यीशु अल मसीह ने तमाम हुआ कहा, और क्या कहा कि तमाम हुआ, तमाम तर शैतान, गुनाह और मौत पर फतह का शादियाना है, तमाम हुआ। और अगर हम देखें तो यीशु अल मसीह ने मौत के वसीले मौत को तबाह कर दिया है। और इब्लीस को तबाह करने पर अगर आप देखना चाहें तो लिखा है इब्रानियों 2:14 और 15 आयत में, इसमें मज़कूर है कि यीशु ने मौत के वसीला से मौत को तबाह किया और इब्लीस से उस मौत के डर को जो हमारे पर था वो खत्म कर दिया, उसको तमाम कर दिया है। अब मौत का डर नहीं रहा। अब हम बड़े ही ईमान से कहते हैं कि वो ईमानदार मरा नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह में सो चुका है। कई लोग जो आज इस कलमा पर बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मिशन जी उठने तक पूरा होता है, यहां पर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो सलीब का दिया जाना और यीशु मसीह का जी उठना, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर यीशु मसीह सलीब पर ना चढ़ाए जाते तो जीते भी। तो इसलिए यहां पर यीशु मसीह के उस मिशन का आगाज होता है और उस कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाता है, और वो ये कहकर कि तमाम हुआ, तमाम नबूतें खत्म हुई, तमाम तर नबूतें पूरी हो चुकी हैं, तमाम तर शरीयत की बातें पूरी हो चुकी हैं और वो नविश्ते पूरे हो चुके हैं। यहां पर पांचवी चीज जो हमें इस कलमा से मिलती है वो है नए अहद का आगाज। यानी पुराना अहद खुदा के साथ जानवरों की कुर्बानी के साथ बुलाता था। यानी जब भी उन्हें खुदा के हुजूर जाना होता था, उन्हें कुर्बानी देना पड़ती थी। लेकिन अब नए अहद में हम खुदा के साथ हमारा मिलाप यीशु मसीह की कुर्बानी से होता है। पहले वो जब यीशु यानी खुदा को मिलते थे तो एक जानवर की कुर्बानी की वसासत से मिलते थे, लेकिन आज हम अगर मिलते हैं, इस नए अहद में मिलते हैं, तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी की वसासत से मिलते हैं। यानी पुराने अहद की जो मर्तकब चीज थी वो काहिन और जानवर थे, लेकिन नए अहद में ये मर्तकब दो चीजें हैं। कौन सी हैं? वो सरदार काहिन यानी यीशु मसीह और रूह कुदस है, जिसकी वसासत से हम यीशु से जा मिलते हैं। और यीशु ने कहा तमाम हुआ। आज मैं इनको खुदा के हुजूर में ले जाने वाला बन चुका हूं।
हालेलुया। यिर्मयाह 31 बाप उसकी 31 से 34 आयत में लिखा है, खुदा एक नया अहद बांधेगा। उसने एक नए अहद के बांधने की तस्दीक की। यिर्मयाह वहां पर कहता है कि इस्राएल जो कौम है वो एक पुराने अहद में बंधी हुई है, लेकिन एक नया अहद बंधेगा। अगर हम देखें हिजकिय्याह 36 उसकी 24 से 27 आयत में, वहां पे लिखा है, मैं एक नया दिल और एक नया रूह इनको बख्शूंगा। यानी नए अहद में सरदार काहिन के साथ हमारे पास खुदा के पास जाने के लिए एक नई राह यानी रूह कुदस मौजूद है। हमें अब कुर्बानियों की जरूरत नहीं। वो पुराना अहद जो है वो मंसूख तो नहीं हुआ, लेकिन हम नए अहद में पांव रख चुके हैं, क्योंकि लिखा है लूका 22:20 में, खून का प्याला नया अहद है। हालेलुया। अगर खून बहाया ना जाता तो हम नए अहद में भी दाखिल ना होते। छठी बात ऐलान है कि हम ईमान के वसीले रास्तबाज ठहरे हैं। हम ना तो अमाल की वसासत से, ना हम दौलत की वसासत से, ना हम शोहरत की वसासत से हम रास्तबाज ठहरते हैं, बल्कि खुदा के फजल के बायस जो यीशु मसीह ने हमें नए अहद में दे दिया है, उसकी वसासत से हम खुदा के रास्तबाज ठहरते हैं। सातवीं बात, तमाम हुआ का नारा इस चीज का ऐलान है और साबित करता है कि कलीसिया को बुलाता है कि वो यीशु मसीह में आराम और प्रस्तिश और मिशन का काम करें। मसीह में आराम का मतलब ये है, यानी निजात का काम तो खत्म हो चुका है, वो तमाम हो चुका है। निजात खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दे दी है, लेकिन हमें अब उस नए यरूशलेम के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस नए अहद के लिए अपने आप को तैयार करना है, और हमें हमारी तमाम तर बुरी रविशों को छोड़कर उन पर फतहमंदी का नारा लगाना है कि हमें तमाम हुआ कहकर हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ नए अहद में शामिल होना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जिंदगियों में देखिए, अपनी जिंदगियों में फतह याबी का नारा लगाइए और तमाम हुआ कह दीजिए। उन तमाम तर गंदी और नापाक चीजों को, उन तमाम तर गुनाहों को, उन तमाम तर ऐसी चीजों को जो आपको खुदा के पास जाने से रोकती हैं, उन्हें कह दीजिए, आज तुम्हारा तमाम हुआ, आज तुम खत्म हो चुकी हो, आज से मेरा खुदा के साथ एक नया रिश्ता है, आज मैं नए अहद में दाखिल हो चुका हूँ, उस फजल में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने उस मिशन को पूरा किया है। अब आगे मेरा मिशन है। प्रेज हालेलुया। वेलकम करते हैं खुदा के बंदा को, पास्टर लीव को, सातवें कलमे के लिए दोबारा मिलाप करते हैं। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। मैं चाहता हूँ ताली बजाते हुए वेलकम करें। खुदा का शुक्र हो आज इस खूबसूरत इबादत के लिए, आज इन तमाम तर खादमों के लिए जिन्होंने आज खुदा के पाक कलाम को आप सबके दरमियान में पेश किया। सबने बड़े अच्छे तौर से और एक नए अंदाज से आपको, कलीसिया को मसीह के कलमात के बारे में सिखाया। उन्होंने जो कुछ कहा वो एक भेद की बात थी, सलीब पाने की जंग थी,
और वो जंग मौत और जिंदगी के दरमियान में हो रही थी। वो जंग अबलीस और मसीह यीशु के दरमियान में हो रही थी। वो जंग आसमान और पताल के दरमियान में हो रही थी। वो जंग गुनाह पर गलबा पर हो रही थी। वो जंग गुनाह को माफ करने पर हो रही थी। आमीन। वो जंग मौत पर गलबा पाने के लिए हो रही थी। वो जंग मौत को जिंदगी में बदलने के लिए हो रही थी। वो जंग सजा को खत्म करने के लिए हो रही थी। वो जंग आम माफी के लिए हो रही थी। आमीन। आइए इस जंग की फतह के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, क्योंकि हम जब से जमीन पर पैदा हुए हैं हमने इस जंग में फतह को देखा है। आमीन। और वो फतह हमारे साथ साथ है। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं। और जो साथ वाले कमरे में बैठे हैं भाई, उनसे भी मैं इल्तिमास करूंगा कि वो मेरे बिल्कुल सामने आ जाइएगा, चाहे बाहर शेर में खड़े हो या चाहे अंदर खड़े हो, लेकिन सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने हाथों को बुलंद करेंगे। अपने हाथों को बुलंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को बुलंद करेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आंखें उस सलीब की तरफ लगाएंगे जहां पर से मेरे और आपके लिए फतह के कलमात जारी होते हैं, जहां से मेरे और आपके लिए जिंदगी जारी हुई है। आइए अपना ध्यान उसकी तरफ लगाकर बड़े ईमान के साथ कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पर हुजूर का खत उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को हम सब मिलकर आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहेंगे और अबलीस के खिलाफ, इस जमीन पर उन कौमों के खिलाफ जो इस सलीब के पैगाम को नहीं मानते, उन सब के लिए इस कलाम को डिक्लेयर करेंगे। सब मिलकर कहते हैं सलीब का पैगाम, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। कहेंगे हालेलुया। आइए आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है। आज बड़ी कौमें, बड़े लोग ये कह रहे होंगे कि मसीही कौम आज एक ऐसी ईद या ऐसे जश्न में मौजूद है जहां पर मसीह को कुर्बान किया गया, लेकिन हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मसीह को कुर्बान ही नहीं किया गया, वहां पर सलीब पर अबलीस का और उसके तमाम ठिकानों का वहां पर बड़ा बड़ा तमाशा बनाया गया था। हालेलुया। खुदा ने वहां पर अबलीस का बड़ा तमाशा बनाया था, उसके तमाम ठिकानों का तमाशा बनाया था, उसके तमाम बोले गए अल्फाज को मसीह यीशु ने कलाम बोलकर उसका जवाब दिया था। वो सिर्फ कलमात नहीं थे, वो किसी इंसान के आखिरी अयान के लफ्ज नहीं थे, बल्कि वो जिंदा खुदा का जिंदा असली आखिरी कलाम था जो उन तमाम अबलीस के सवालों को जवाब दे रहा था। वो वहां पर सलीब पर लटका हुआ डिक्लेयर कर रहा था, वो कलाम को बोल रहा था। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को बगैर मुतालिया करें तो यीशु मसीह नासरी ने जिस दिन उसने मनाती को शुरू किया नासरत के इलाका से, तो नासरत के इलाका में यीशु मसीह नासरी ने यशायाह नबी का सहीफा उसका 61 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को जब वहां पर इबादत खाने में पढ़ा तो किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी दावेदार ने ये नहीं कहा कि आज ये कलाम या आज ये नविश्ता पूरा हुआ। वाहिद वो इस जमीन पर यीशु मसीह नासरी था जिसने यहोवा इस्राएल के खुदा के कलाम को कहा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ है। आमीन। इस जमीन पर बड़े पहलवान है, बड़े पहलवान है, बड़े अपने आप को नबी कहते हैं, बड़े अपने आप को रसूल कहते हैं, बड़े अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन किसी ने शरीयत की किताब को खोल कर ये नहीं कहा कि ये पूरा हुआ।
क्योंकि कलाम उसका था, वो जानता था कि मैं इसको कब कहां किस वक्त पूरा करूंगा। बाइबल मुकद्दस में अगर हम बगौर मुताला करें तो लिखा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में क्या करता हूं, सौंपता हूं। दोबारा मला रिवर्स, जहां पर मसीह यीशु ने सलीब पर कलमात कहे, अगर उन कलमात को बड़े गौर के साथ यहाँ पर हमारे भाइयों ने, मेरी मिसेस ने बड़े अच्छे से कलाम को बयान किया है। जब इन कलमात को हम गहरे में जाकर सोचते हैं या पुरानी अहद में से इनको खोलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये हमारा जात नबियों की किताब में, ये हमारा जात आपको ज़बूर की किताब में, ये शरीयत में से आपको मिलेंगे। और उनको खुदा यीशु ने सलीब पर बोल कर डिक्लेयर कर इब्लीस को कहा कि ये भी मैंने पूरा कर दिया है, ये भी मैंने पूरा कर दिया है, ये भी मैंने पूरा कर दिया है। इस जमीन पर किसी इंसान, किसी मौलम, किसी बादल, किसी आलम ने ये बात नहीं कही। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्लीस यीशु के पास आया उसे आजमाने के लिए, और ये इब्लीस ने जब ही सवाल किया, यीशु ने शरीयत में से, यीशु ने ज़बूर में से, यीशु ने नबियों के सहायक में से बात की, कलाम दिया और उसके सवाल का जवाब दे दिया। आमीन। ऐसा नहीं है? तो वो जो शुरू से कलाम की आयात खोल कर उसको बयान करता है, यहां पर भी वो सलीब पर उसको कलाम की आयात खोल कर उसके आगे रखा है और उसको वो जवाब दे रहा है। वहां पर जंग तीर की नहीं, वहां पर जंग तलवार की नहीं, वहां पर जंग नेज़े की नहीं, वहां पर जंग थी इल्जाम लगाने वाले की। और इल्जाम लगाने वाले को मसीह यीशु ने पूरे जवाब देकर कहा कि मैं अब अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आमीन। जो कि इसके पास तो से वो पूरा किया। यीशु मसीह नासरी को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह नासरी को कोई तीर, कोई जगत, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। भाई बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मसीह यीशु ने कहा कि वो अपने लिए, अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब उसकी 18 पर तो लिखा, बाप मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर क्या करूं, फिर ले लूं। मैं अपनी जान देता हूं, उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जान क्या करता है, खुद देता है। इब्लीस इस बात से खुश था कि ये अब अपनी जान देगा और मैं इसे वापस नहीं करूंगा। इब्लीस खुश था कि अब ये पताल में उतरेगा तो मैं इसे वापस आने नहीं दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, लेकिन जो जान गुनाह करेगी नहीं तो वो कैसे मर सकती है? वो कैसे मरी रह सकती है? वो कैसे पताल में रह सकता है? क्योंकि उसकी जुबान पर तो कोई जुल्म ही नहीं था और वो बेगुनाह था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब गेत्सेमनी बाग में